Hello everyone and hope you all doing well. बिहार बोर्ड क्लास 8 इंग्लिश के चैप्टर नंबर 2 में आप सभी बच्चों का जो है हम वेलकम करते हैं। और ये जो चैप्टर है वो है स्लीप यानी कि नींद के बारे में। और इस चैप्टर में हमें जो बढ़िया नींद है या गहरी नींद है इसके फ़ायदे बताए गए हैं। साथ ही साथ अगर हम कम नींद लेते हैं तो इससे हमें क्या नुकसान हो सकते हैं ये भी बताया गया है। और स्वस्थ बने रहने और बीमारियों से लड़ने के लिए जो है नींद वो बेहद ही ज़रूरी है। इसके बारे में हम डिटेल्स से इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं इस चैप्टर को रीड करके आपको सुना देता हूँ, बता देता हूँ कि कैसे इसकी रीडिंग कैसे करनी है। और फिर इस चैप्टर से रिलेटेड जो कठिन शब्द हैं, जो वर्ड्स हैं, उसके हिंदी मीनिंग जान लेते हैं। और फिर मैं इसे हिंदी में ट्रांसलेट करके भी आपको बताऊंगा। और दूसरी बात, मैंने जब ये बुक को पढ़ना शुरू किया है तो देख रहा हूँ कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है टाइपिंग मिस्टेक्स हुए हैं और ये प्रिंटिंग मिस्टेक्स भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है, तो उसको सुधार भी लेंगे। जैसे यहाँ पे आवर लिखा होगा, यहाँ पे ऑल को AIL लिखा गया था और यहाँ पे आवर को जे से लिखा गया है, ठीक है। और इसी तरह से कुछ और भी मिस्टेक्स हैं, जैसे यहाँ पे 7 आवर्स को जो है इवन आवर्स ओनली लिखा गया था, एस मिसिंग है। तो आपके भी बुक में अगर मिसिंग प्रिंट होगा तो आप यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिएगा, जब मैं यहाँ पे पढ़ूंगा करेक्शन करता जाऊंगा। तो आइए सबसे पहले इसको रीडिंग करते हैं। Nobody knows why we sleep, but we all need to. Sleep helps our body and brain develop and grow. Our body needs sleep to stay healthy and fight sickness. During sleep, our muscles, bones, and skin can grow, and muscles, skin, and other parts can fix injuries. Our brain needs sleep. Sleep helps our brain to remember what we learn. It also helps brain to pay attention and concentrate. सेकेंड पैराग्राफ है, यहाँ पे भी देखिए देयर होगा पहले THERE और यहाँ पे 88 लिख दिया है। देयर आर होगा, यहाँ पे क्या होगा ARER। देयर आर नो रूल्स अबाउट हाउ मच स्लीप इज नेसेसरी, but an average adult sleeps for 7 hours and 20 minutes. About 8% of adults are happy with 5 hours or less of sleep, and 4% want 10 hours or more. Children at the age of 5 to 12 years need to 10 to 11 hours of sleep each night. Babies need between 14 to 18 hours, whereas the elderly needed less than they did when young. They often take a nap during the day. There are 5 stages in one sleep cycle. Each sleep cycle takes about 90 minutes. The sleep cycle is repeated 5 times during the night. During the stages 1 and 2, you first fall asleep but are not yet in a deep sleep. During the stages 3 and 4, we are in a deep sleep. Your breathing and heart rate slow down and your body is motionless. During the fifth stage, your brain is active and you dream. You dream during the stage of sleep called rapid eye movement or REM. Rapid eye movement. During the REM, your eyes move under your eyelids rapidly. Normal sleep is made up of two alternating phases.
Phase 1 in phase 1 involves no dreaming. Usually it occurs in the early part of the night. Phase 2 involves dreaming. It occurs mostly in the later part of the night for varying periods of time. If you wake up during this phase, you will almost certainly remember your dreams. When we sleep, the body functions slow down. The bodily functions slow down, body temperature falls. This is because our body keeps to a regular 24-hour cycle during which body temperature rises and falls at fixed times. Normally, body temperature is lowest in the middle of the night and the highest in the afternoon. When you get enough sleep, you can pay attention better in school, be creative, and think of new ideas. Fight sickness so you stay healthy. Be in a good mood and get along well with friends and family. If you don't get enough sleep, you can forget what you learn, have trouble making decisions, be in a bad mood, have trouble playing games, have trouble listening to parents and teachers, and be less patient with friends, brothers, and sisters. Sometimes everyone has difficulty in sleeping, but if you miss a couple of hours of sleep, no harm is done. You may feel tired and irritable the next day, but the body soon makes up for the loss. However, if you try to stay awake night after night, you soon begin to behave strangely. You lose the ability to concentrate and your judgment gets impaired. You begin to imagine strange things and your behaviors become deranged. और लास्ट पैराग्राफ है, a lot of people have serious sleep problems. Some people find that they cannot sleep. Some wake up in the middle of the night or too early in the morning. There are a number of causes. Worry and depression are the most common causes. All kinds of things in an environment can affect sleep, noise, light, heat, cold, or new surroundings. Pain in illness can also keep people awake. Most of us can accept temporary sleeplessness without seeking help. Many people become addicted to sleeping pills, but sleeping pills do not cure the disorder of sleeplessness called insomnia. It is better to avoid them if we can. It is much better to identify the problem and remove it. और इस तरह से ये रीडिंग हमने यहाँ पे पूरा कर लिया है और अब हम इस चैप्टर के हिंदी मीनिंग को समझेंगे। सबसे पहले वार्मर देखते हैं। वाई डू वी स्लीप, हम लोग क्यों सोते हैं। डू ऑल पर्सन्स स्लीप्स फॉर द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, क्या सभी लोग एक समान मात्रा में सोते हैं। डू यू एवर हैव ड्रीम्स, क्या आपने कभी सपना देखा है। इफ़ येस, नरेट द ड्रीम्स विच यू लाइक डिसलाइक मोस्ट, अगर आपने देखा है तो आप अपने सपने को बताएं कि आप उसे पसंद करते हो या ना पसंद करते हो। वाई डू यू थिंक वी हैव ड्रीम्स, आपको क्या लगता है कि हम सपने क्यों देखते हैं। ठीक है, ये था हमारा वार्मर और आगे हम पहला पैराग्राफ को देखेंगे। पहले, Nobody knows why we sleep, but we all need to. कोई नहीं जानता कि हम सोते क्यों हैं, लेकिन हम सब के लिए सोना जो है वो ज़रूरी होता है। Sleep helps our body and brain develop and grow. नींद जो है
हमारे शरीर और मस्तिष्क को विकसित करती है और इसका विकास करती है। आवर बॉडी नीड्स स्लीप टू स्टे हेल्दी एंड फाइट सिकनेस। हमारे शरीर को स्वस्थ बने रहने और बीमारियों से लड़ने के लिए नींद की आवश्यकता होती है। ड्यूरिंग स्लीप आवर मसल्स, बोन्स एंड स्किन कैन ग्रो एंड मसल्स, स्किन्स एंड अदर पार्ट्स कैन फिक्स इंजुरीज। सोने के दरमियान हमारे मांसपेशियां, हड्डियां और त्वचा विकसित होते हैं और हमारी जो मांसपेशियां हैं, त्वचा हैं और दूसरे जो शरीर के अंग हैं, वो जो इंजुरीज होती हैं, हमें जो चोट लगते हैं, जो बीमारियां हो जाती हैं, उसको दूर करने में लग जाती हैं। ठीक है। आवर ब्रेन नीड्स स्लीप। हमारे मस्तिष्क को नींद की ज़रूरत होती है। स्लीप हेल्प्स आवर ब्रेन टू रिमेंबर व्हाट वी लर्न। नींद जो है हमारे मस्तिष्क को जो चीज़ें हम सीखते हैं उसे याद रखने में मदद करते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स ब्रेन टू पे अटेंशन एंड कॉन्सेंट्रेट। यह मस्तिष्क को ध्यान देने और चीज़ों को समझने में भी मदद करता है। और अब हम दूसरा पैराग्राफ देखते हैं। देयर आर नो रूल्स अबाउट हाउ मच स्लीप इज नेसेसरी। ऐसा कोई नियम नहीं है जिससे पता चले कि हमें कितना सोना चाहिए। बट एन एवरेज एडल्ट स्लीप्स फॉर 7 hours and 20 minutes। लेकिन औसत रूप से अगर देखा जाए तो एक वयस्क आदमी 7 घंटे और 20 मिनट तक सोता है। अबाउट 8% ऑफ एडल्ट्स आर हैप्पी with 5 hours or less of sleep and 4% want 10 hours or more। 8% जो वयस्क लोग हैं ऐसे हैं जो 5 घंटे या उससे कम की नींद से भी खुश होते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं, और 4% ऐसे लोग हैं जो 10 घंटे या उससे ज़्यादा सोना पसंद करते हैं। चिल्ड्रेन एट द एज ऑफ 5 to 12 years नीड 10 to 11 hours of sleep each night। छोटे बच्चों जिनकी उम्र जो है 5 साल से 12 साल की आयु तक होती है, उनको 10 से 11 घंटे हर रात सोने की ज़रूरत पड़ती है, नींद की आवश्यकता होती है। बेबीज़ नीड बिटवीन 14 to 18 hours। ठीक है। और बच्चों को जो है 14 से 18 घंटे तक नींद की आवश्यकता होती है। वेयर एज द एल्डरली नीड लेस देन दे डिड व्हेन यंग। और जो बूढ़े लोग होते हैं उनको जब वे जवान थे, वयस्क थे, उससे कम नींद की आवश्यकता पड़ती है। दे ऑफन टेक अ नैप ड्यूरिंग द डे। और वे दिन के समय में हल्का फुल्का जो है नींद ले भी लेते हैं, झपकी ले भी लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देयर आर 5 stages इन वन स्लीप साइकिल। नींद का जो चक्र होता है, जो दौर होता है, उसमें 5 चरण होते हैं। ईच स्लीप साइकिल टेक्स अबाउट 90 minutes। और हर एक चरण जो है लगभग 1.5 घंटे का होता है। ठीक है। द स्लीप साइकिल इज रिपीटेड 5 times ड्यूरिंग द नाइट। और ये जो नींद का जो चक्र है वो 5 बार दोहराया जाता है रात के टाइम में। ड्यूरिंग द स्टेजेस 1 and 2 यू फर्स्ट फेल asleep। ठीक है। और जो पहला यहाँ पे फेल नहीं बल्कि फॉल होगा, फॉल asleep। ठीक है ना, FALL होगा। ठीक है। ड्यूरिंग द स्टेजेस 1 and 2 पहले और दूसरे चरण में यू फर्स्ट फॉल asleep। आपको नींद जो है फील होता है, महसूस होने लगता है, आपको नींद आने लगती है। बट आर नॉट येट इन अ डीप स्लीप। लेकिन आप बहुत ज़्यादा गहरी नींद में नहीं चले जाते हो। ड्यूरिंग द स्टेजेस 3 and 4 वी आर इन अ डीप स्लीप। और तीसरे और चौथे चरण में हम लोग जो है गहरी नींद में सो जाते हैं। योर ब्रीदिंग एंड हार्ट रेट स्लो डाउन। और हमारी जो सांस लेने की जो प्रक्रिया है और दिल का जो धड़कना है वो धीमा हो जाता है। एंड योर बॉडी इज़ मोशनलेस। और हमारा जो शरीर है
वो गति करना क्या करता है, बंद कर देता है। ड्यूरिंग द 5th स्टेज और 5वें चरण में योर ब्रेन इज एक्टिव एंड यू ड्रीम, हमारा जो मस्तिष्क है वो क्या हो जाता है, सक्रिय हो जाता है और अब हम सपने देखने लगते हैं। यू ड्रीम ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ स्लीप कॉल्ड रैपिड आई मूवमेंट और REM। जिस अवस्था में या फिर जिस चरण में हम सपने देखते हैं, इस चरण को हम रैपिड आई मूवमेंट कहते हैं। ठीक है। ड्यूरिंग द रैपिड आई मूवमेंट योर आइज मूव्स अंडर योर आईलिड्स रैपिडली, और जब ये चरण चल रहा होता है तो इस समय में हमारी जो आँखें होती हैं वो हमारी पलकों के अंदर बहुत तेज़ी से क्या करती हैं, मूव करती हैं, आँखें मूवमेंट करने लगती हैं। नॉर्मल स्लीप इज़ मेड अप ऑफ 2 ऑल्टरनेटिंग फेजेस, और जो सामान्य नींद है वो एक के बाद एक 2 चरणों में जो है पूरा होता है। फेज़ 1 इन्वॉल्व्स नो ड्रीमिंग, पहले फेज़ में, पहले चरण में जो है आपको जो है सपने नहीं आते हैं। यूजुअली इट ऑकर्स इन द अर्ली पार्ट ऑफ द नाइट, और ये जो है रात के शुरुआती हिस्सों में पूरा होता है। फेज़ 2 इन्वॉल्व्स ड्रीमिंग, इट ऑकर्स मोस्टली इन द लेटर पार्ट ऑफ द नाइट फॉर वेरिंग पीरियड ऑफ टाइम, और जो दूसरा फेज़ है वो सपनों का होता है और ये ज़्यादातर रात के आखिरी हिस्से में होता है, और फॉर वेरिंग पीरियड ऑफ टाइम, और अलग अलग भिन्न भिन्न समय में भी हो सकता है। इफ़ यू वेक अप ड्यूरिंग दिस फेज़, अगर आप इस फेज़ में, इस चरण में उठ जाते हैं, यू विल ऑलमोस्ट सर्टेनली रिमेंबर योर ड्रीम्स, तो ज़्यादातर आपको जो सपने हैं वो याद रह जाते हैं। अगर आपकी नींद उस वक्त खुल जाती है तो आपको जो सपना आप देख रहे होते हैं वो आपको याद रह जाती है कि आप अभी सपने में क्या देख रहे थे। When we sleep, the bodily functions slow down, body temperature falls। जब हम सो जाते हैं तो हमारी जो शारीरिक जो प्रक्रियाएं हैं वो क्या होती हैं, धीमी पड़ जाती हैं, और हमारे शरीर का जो तापमान है वो भी गिरने लगता है। दिस इज़ बिकॉज आवर बॉडी कीप्स टू अ रेगुलर 24-hour cycle ड्यूरिंग विच बॉडी टेम्परेचर राइजेज एंड फॉल्स एट फिक्स्ड टाइम्स, और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 24 घंटे के चक्र में हमारा शरीर कब इसका तापमान बढ़ेगा और कब इसका तापमान घटेगा, ये इसका समय जो है वो निश्चित होता है। नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर इज़ लोएस्ट इन द मिडिल ऑफ द नाइट एंड द हाईएस्ट इन द आफ्टरनून। आमतौर से यह सामान्यतः जो हमारे शरीर का तापमान है वो आधी रात को क्या होता है, सबसे कम हो जाता है, और दोपहर के समय सबसे अधिक होता है हमारे शरीर का तापमान। ठीक है। और आगे, व्हेन यू गेट इनफ स्लीप यू कैन पे अटेंशन बेटर इन स्कूल, बी क्रिएटिव एंड थिंक ऑफ न्यू आइडियाज़। जब आप सही मात्रा में नींद लेते हैं, अच्छी नींद लेते हैं, तो आप स्कूल में सही से ध्यान लगा पाते हैं अपने पढ़ाई में, और आपकी जो सोच है उसमें नए नए विचार आने लगते हैं, और रचनात्मक आपका जो सोच है वो रचनात्मक हो जाता है। फाइट सिकनेस सो यू स्टे हेल्दी, और बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिल जाती है, तो इससे हम जो है स्वस्थ रहते हैं। बी इन अ गुड मूड एंड गेट अलॉन्ग विद, बी इन अ गुड मूड, हमारा जो मूड है वो अच्छा हो जाता है और हमारा व्यवहार अच्छा हो जाता है। एंड गेट अलॉन्ग वेल विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, और हम अपने दोस्तों और परिवार से अच्छे से मिलते हैं। इफ़ यू डोंट गेट इनफ स्लीप, अगर आप अच्छे से जो है नहीं सो पाते हैं, आपकी नींद पूरी नहीं होती है, यू कैन फॉरगेट व्हाट यू लर्न, आप जो सीखते हैं उसे भूल सकते हैं। हैव ट्रबल मेकिंग डिसीजंस, और आपको जो है किसी भी चीज़ का निर्णय लेना आपके लिए जो है कठिन हो जाता है। बी इन ए बैड मूड, और आपका जो मूड है वो भी अच्छा नहीं रहता है। हैव ट्रबल प्लेइंग गेम्स, हैव ट्रबल्स लिसनिंग टू पेरेंट्स एंड टीचर्स, खेलने में भी परेशानी होती है, और अपने माता पिता तथा शिक्षकों को सुनने में भी मज़ा नहीं आता है। मतलब अगर नींद पूरा नहीं होता है तो हमारा सारा दिन सही नहीं जाता है। एंड बी लेस पेशेंट विद फ्रेंड्स,
ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और हम अपने भाई बहनों के साथ या दोस्तों के साथ जो है बहुत कम पेशेंट रह पाते हैं। नहीं तो क्या होता है, बहुत थोड़ी थोड़ी सी बात पे बहस कर लेते हैं, झगड़े हो जाते हैं। तो लेस पेशेंट होना जो है, इसका मतलब होता है कि हम अपना धैर्य खो बैठते हैं, है ना। ज़रा ज़रा सी बात पे झगड़ा कर लेते हैं, बहस कर लेते हैं। तो ये है नींद पूरा नहीं होने के जो डिसएडवांटेजेस हैं, वो यहाँ पे बताया गया है। समटाइम्स एवरीवन हैज़ डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग। कभी कभी सभी को सोने में कठिनाइयाँ होती हैं। बट इफ़ यू मिस अ कपल ऑफ आवर ऑफ स्लीप, लेकिन आप शुरू के अगर 2 घंटे 3 घंटे अगर आप मिस कर देते हैं, नहीं सो पाते हैं, नो हार्म इज़ डन, इससे कोई ज़्यादा नुकसान नहीं है। यू मे फील टायर्ड एंड इरिटेबल द नेक्स्ट डे। हो सकता है कि अगले दिन आप थोड़ा सा टायर्ड फील करें, थका थका सा फील करें, फ्रेशनेस नहीं हो, और आप इरिटेबल मतलब चिड़चिड़ापन आ सकता है आपके अंदर। बट द बॉडी सून मेक्स अप फॉर द लॉस। लेकिन हमारा जो शरीर है वो जो इस लॉस को कवर कर लेती है, उसको ठीक कर लेती है, ठीक है। हाउएवर इफ़ यू ट्राई टू स्टे अवेक नाइट आफ्टर नाइट, लेकिन आप अगर लगातार कई रातों तक अगर आप सही से नहीं सो पाते हैं या नहीं सोते हैं, यू सून बिगिन टू बिहेव स्ट्रेंजली, इससे आप बहुत जल्द जो है विचित्र तरह से जो है व्यवहार करना शुरू कर सकते हैं। आपका बिहेवियर चेंज हो सकता है। यू लॉस द एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट एंड योर जजमेंट गेट्स इम्पेयर्ड, है ना। तो हमारी जो सोचने समझने की जो शक्ति है वो कम हो जाती है। फैसला लेने का जो शक्ति होता है वो उसको भी नुकसान पहुंचता है, कमज़ोर हो जाता है। और यू बिगिन टू इमेजिन स्ट्रेंज थिंग्स, और हम विचित्र तरह की चीज़ों को सोचना शुरू कर देते हैं, इमेजिन करना शुरू कर देते हैं, कल्पना करने लगते हैं अजीब अजीब बातें, है ना। एंड योर बिहेवियर बिकम्स डी डिरेंज्ड एंड योर बिहेवियर बिकम्स डिरेंज्ड, और हमारा जो व्यवहार है वो क्या हो जाता है, असामान्य हो जाता है। डिरेंज्ड का मतलब असामान्य हो जाता है। चलिए, अ लॉट्स ऑफ पीपल हैव सीरियस स्लीप प्रॉब्लम्स, बहुत सारे लोगों को जो है नींद की जो है बीमारियां होती हैं। सम पीपल फाइंड दैट दे कैन नॉट स्लीप, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जिन्हें लगता है कि उनको नींद बिल्कुल भी नहीं आती है, वो सो ही नहीं सकते हैं। सम वेक अप इन द मिडिल ऑफ द नाइट और टू अर्ली इन द मॉर्निंग, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आधी रात को उनकी नींद जो है खुल जाती है, या किसी किसी को बहुत जल्दी सुबह मतलब अर्ली मॉर्निंग को ही नींद खुल जाती है। देयर आर अ नंबर ऑफ कॉजेज़, और इसके बहुत सारे जो है कारण हो सकते हैं। वॉरी एंड डिप्रेशन आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज़, और सबसे जो सामान्य कारण है वो है चिंता का होना। अगर आप चिंतित होते हैं या डिप्रेशन में होते हैं, किसी तरह की आपको गहरा सदमा होता है, तो इस तरह के सिचुएशन में आपको नींद बिल्कुल भी नहीं आती है ना। ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स इन द एनवायरनमेंट कैन अफेक्ट स्लीप, जैसे नॉइज़, लाइट, हीट, कोल्ड और न्यू सराउंडिंग्स। और पर्यावरण में घटित होने वाली कई तरह की चीज़ें, जैसे कि शोर शराबा हो या रोशनी हो या गर्मी हो या बहुत ज़्यादा ठंड हो या कोई नई जगह हो, वहाँ पे भी जो है नींद आने में कठिनाइयाँ हो सकती हैं। पेन इन इलनेस कैन ऑल्सो कीप पीपल अवेक, और अगर आप बीमार हैं, कहीं दर्द है, तो दर्द के कारण भी आपको जो है नींद अच्छी नहीं आती है, आप जगे रहते हैं। मोस्ट ऑफ अस कैन एक्सेप्ट टेम्परेरी sleeplessness without seeking help. Many people become addicted to sleeping pills, but sleeping pills do not cure the disorder of sleeplessness called insomnia. ठीक है। और यहाँ पे कह रहा था कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो अस्थायी तौर पर अगर नींद नहीं लेते हैं, most of us can accept temporarily sleeplessness विदाउट सीकिंग हेल्प, मतलब बिना इलाज के अगर कुछ दिनों तक अगर हमें नींद नहीं आती है तो बिना इलाज के, बिना किसी मदद के हम रह सकते हैं, ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। लेकिन अगर बहुत दिनों तक ऐसा हो रहा है, मैनी पीपल बिकम एडिक्टेड टू स्लीपिंग पिल्स, और बहुत सारे लोग जो है नींद की गोलियां लेना शुरू कर देते हैं और उसके आदी बन जाते हैं,
बट स्लीपिंग पिल्स डू नॉट क्योर द डिसऑर्डर ऑफ स्लीपलेसनेस। लेकिन ये जो नींद की गोलियां होती हैं, इससे जो नींद नहीं आने की बीमारी है, इससे ठीक नहीं होता है। ये जो डिसऑर्डर हुआ है, जो व्याधि हुई है, जो बीमारी हुई है, इसको ये गोली ठीक नहीं करता, बस आपको नींद आ जाती है, लेकिन बीमारी ख़त्म नहीं होता। इससे हम इस जो पिल्स होते हैं, जो दवाइयाँ होती हैं नींद की, उसके आदी बन जाते हैं। स्लीपलेसनेस कॉल्ड इंसोम्निया, और जो नींद नहीं आने की जो अनिद्रा की बीमारी है उसको हम इंसोम्निया कहते हैं। इट इज़ बेटर टू अवॉइड देम इफ़ वी कैन, मतलब कहा जा रहा है कि अगर हम नींद की गोलियों को अवॉइड कर सकते हैं तो हमें ज़रूर से इसे अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज़रूरी हो तभी नींद की गोली खानी चाहिए, नहीं तो हमें इसे अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज़ हम इसके एडिक्टेड हो जाएंगे, इसके आदी हो जाएंगे और इसके बिना कभी भी नींद नहीं आएगी। इट इज़ मच बेटर टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड रिमूव इट, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि किस कारण से नींद नहीं आ रहा है, उस कारण का पता किया जाए और उस कारण को दूर किया जाए, उस परेशानी को दूर किया जाए, जिससे कि हमें अच्छी नींद आ सके और हमारा हेल्थ अच्छा बना रह सके। उसके बाद यहाँ पे कुछ वर्ड्स के मीनिंग दिए गए हैं जो बुक में हैं, पहले आप इसे देख लें। ग्लॉसरी एंड नोट्स के तौर पे नेसेसरी का मतलब होता है मस्ट, यानी कि एसेंशियल, अनिवार्य, आवश्यक। एल्डरली यानी कि ओल्ड पीपल, उम्र दराज या बुजुर्ग। नैप के मानी होते हैं शॉर्ट स्लीप ड्यूरिंग द डे, यानी कि झपकी लेना। सर्टेनली को हम डेफिनेटली या विदाउट फेल भी कह सकते हैं, निश्चित रूप से या अवश्य। बॉडीली मतलब ऑफ द बॉडीली, शारीरिक कह सकते हैं। इरिटेबल मतलब इजीली अनॉयड, चिड़चिड़ा या परेशान होना। डिरेंज्ड, डिरेंज्ड के मानी एबनॉर्मल या असामान्य। गेट्स इम्पेयर्ड मीन्स गेट्स वीकेंड और डैमेज्ड, कमज़ोर या असंगत हो जाना। एडिक्टेड टू के मानी होते हैं यूज्ड टू, यानी कि लत लग जाना आदि। और इंसोम्निया के मानी होते हैं स्लीपलेसनेस या अनिद्रा की बीमारी, जिसमें आपको नींद नहीं आता है। और यहाँ पे इस चैप्टर से रिलेटेड जो है ऑलमोस्ट सारे वर्ड्स दिए गए हैं, जिसके मीनिंग भी लिखे हैं, और प्रोनाउंस कैसे करना है, उसका उच्चारण कैसे होगा वो भी दिया गया है, तो आप इसे भी एक नज़र देख लें। डू के मानी होते हैं करना, स्लीप मतलब सोना, पर्सन मतलब व्यक्ति, सेम, सेम के माने वही या समान, अमाउंट मतलब राशि या मात्रा, टाइम का मतलब समय, एवर, एवर मीन्स कभी, ड्रीम, ड्रीम के मानी होते हैं स्वप्न या सपना। नैरेट, नैरेट मतलब होता है वर्णन करना, जिक्र करना। लाइक मतलब पसंद करना, डिसलाइक मतलब नापसंद करना। मोस्ट के मानी होते हैं अधिकतम, और थिंक के मानी होते हैं सोचना। और आगे है देखिए नोबडी, नोबडी मतलब कोई व्यक्ति नहीं या कोई भी नहीं। नोज मतलब जानता है। ऑल मतलब सभी। नीड के मानी होते हैं आवश्यकता। हेल्प्स के मानी होते हैं मदद करता है। आवर के मानी हमारा। बॉडी के मानी शरीर। ब्रेन के मानी दिमाग। और डेवलप के मानी होते हैं विकसित होना। डेवलप के मानी विकसित होना। चलिए, ग्रो के मानी होते हैं बढ़ना। स्टे के मानी बने रहना। हेल्दी, हेल्दी के मानी स्वस्थ। और उसके बाद है फाइट, फाइट के मानी लड़ना। सीकनेस के मानी होते हैं बीमारी। ड्यूरिंग का मतलब होता है के दौरान। मसल्स के मानी होते हैं मांसपेशियाँ। बोन्स के मानी हड्डियाँ। स्किन चमड़ा या त्वचा। कैन सकना। अदर अन्य। चलिए आगे है नेसेसरी, नेसेसरी के मानी होते हैं आवश्यक। बट लेकिन। एवरेज औसत। एडल्ट वयस्क। फॉर के लिए। हैप्पी खुश। लेस कम। एंड और या फिर तथा कहते हैं। वांट, वांट मीन्स चाहना। मोर और अधिक। चिल्ड्रेन बच्चे। एज उम्र या अवस्था। नीड आवश्यकता होना या चाहना। इच, इच के मानी होते हैं प्रत्येक। और बेबीज मतलब शिशु या छोटे बच्चे। बिटवीन मतलब मध्य में या बीच में। वेयर एज जबकि। एल्डरली उम्र दराज या बुजुर्ग। देन के मानी होते हैं अपेक्षा से या अधिक। वेन मीन्स जब। यंग
युवा, ऑफन अक्सर, नैप झपकी लेना, हल्की नींद लेना, ड्यूरिंग दौरान या बीच में। स्टेजेस अवस्थाओं या चरणों, साइकिल चक्र या दौर, टेक्स मीन्स लेता है, रिपीट दोहराना, फर्स्ट प्रथम या पहले, फॉल अस्लीप मतलब सो जाना, येट मीन्स तो भी, डीप गहरा, ब्रीदिंग सांस लेना, हार्ट रेट यानी कि दिल का धड़कना, स्लो डाउन कम हो जाना, मोशनलेस निष्क्रिय या बिना गति के, एक्टिव सक्रिय या गतिशील, ड्रीम के मानी सपना, टू ड्रीम सपना देखना, सपने देखना, रैपिड तेज तीव्र, मूवमेंट मतलब गति या हरकत, मूव मतलब हिलना, अंडर अंडर के मानी होंगे नीचे, आईलिड्स मतलब पलकें, रैपिडली तेजी से तीव्रता से, नॉर्मल के माने सामान्य, मेडअप ऑफ मतलब बना हुआ, और अल्टरनेटिंग मतलब होगा क्रम से या एक के बाद दूसरा। इन्वॉल्व के मानी होते हैं मिलाना या संयुक्त करना, यूजुअली प्रायः आमतौर पर, ऑकर्स मतलब घटित होना, अर्ली मतलब शीघ्र या पहले, पार्ट के मानी होते हैं हिस्सा, मोस्टली अधिकतर, लेटर मतलब अगला या बाद का, वैरिंग मतलब होता है विचरण करते या भिन्न, पीरियड के मानी होते हैं अवधि या काल, टाइम मतलब समय, वेकअप माने जाग, वेकअप मीन्स जाग जाना या जगना, ऑलमोस्ट मतलब प्रायः, सर्टेनली के मानी होते हैं निश्चित तौर पर, क्या होते हैं निश्चित तौर पर, बॉडीली मतलब शारीरिक, फंक्शंस मतलब कार्य या काम, स्लो डाउन मतलब धीमे पड़ जाना, टेम्परेचर मतलब तापमान, फॉल्स मतलब गिर जाता है, रेगुलर मतलब नियमित या निश्चित काल पर होने वाला, फिक्स्ड माने निश्चित या नियत, नॉर्मली मतलब सामान्यतः, लोएस्ट मतलब सबसे कम, और मिडल का मतलब होता है मध्य। हाईएस्ट के मानी होते हैं सबसे अधिक, इनफ मतलब पर्याप्त, पे अटेंशन मतलब ध्यान देना, बेटर के मानी ज़्यादा या अच्छा, क्रिएटिव मतलब रचनाशील रचनात्मक, थिंक के मानी होते हैं सोचना, न्यू के मानी नया, आइडियाज़ विचारें, फाइट लड़ना, सीकनेस बीमारी, सो इस कारण से, स्टे मतलब रहना, हेल्दी स्वस्थ, बी होना, मूड मिजाज मन की बात, गेट अलोंग आगे बढ़ना, वेल अच्छा, विद के साथ, फ्रेंड दोस्त, फैमिली परिवार, इफ़ यदि, गेट पाना, फॉरगेट भूलना, मूड मिजाज मन की अवस्था, गेट अलोंग आगे बढ़ना, वेल अच्छा, विद के साथ, फ्रेंड दोस्त, फैमिली परिवार, इफ़ यदि, गेट पाना, फॉरगेट भूलना, लर्नड सीखा हुआ, ट्रबल समस्या, मेकिंग मतलब बनाना या यहाँ लेना, डिसीजंस निर्णय या फैसला, लिसनिंग सुनना, पेरेंट्स माता पिता, टीचर्स शिक्षकों, पेशेंट मीन्स धैर्यपूर्ण, समटाइम्स कभी कभी, डिफ़िकल्टी कठिनाई, और मिस के मानी होते हैं खोना। कपल के मानी जोड़ा या दो, हार्म नुकसान, डन होना, में सकना, फील महसूस करना, टायर्ड थका हुआ, इरिटेबल चिड़चिड़ा या परेशान, नेक्स्ट अगला या आगामी, सून शीघ्र,
मेकअप ठीक कर लेना, लॉस हानि, हाउएवर किसी प्रकार, ट्राई कोशिश करना, स्टे अवेक जगे रहना, नाइट आफ्टर नाइट मतलब हर रात, बिगिन शुरू होना, बिहेव व्यवहार करना, स्ट्रेंजली विचित्रता से, लूज खोना, एबिलिटी योग्यता, कॉन्सेंट्रेट ध्यान देना, जजमेंट निर्णय, गेट्स इम्पेयर्ड मीन्स कमज़ोर या असंगत हो जाता है, इमेजिन कल्पना करना, स्ट्रेंज विचित्र, थिंग्स चीज़ें, बिहेवियर व्यवहार, बिकम्स हो जाता है, डिरेंज्ड असामान्य, अलॉट ऑफ बहुत सारे, पीपल लोग, सीरियस गंभीर, प्रॉब्लम समस्या, सम कुछ, फाइंड पाना, टू भी, नंबर ऑफ ढेर सारे, काउज कारण, वॉरी चिंता, डिप्रेशन दबाव या शक्तिहीनता, कॉमन आम सामान्य, ऑल सभी, काइंड्स प्रकार, एनवायरनमेंट वातावरण, अफेक्ट प्रभावित करना असर डालना, नॉइज शोर, लाइट प्रकाश, हीट उष्मा या गर्मी, कोल्ड ठंड, न्यू न्यू के माने क्या होंगे नया, ठीक है, सराउंडिंग्स इर्द गिर्द, बाहरी स्थान, पेन दर्द, इलनेस बीमारी, ऑल्सो भी, कीप अवेक जगाए रखना, मोस्ट ऑफ अस हम में से अधिकतर, एक्सेप्ट स्वीकार करना, टेम्परेरी अस्थाई, स्लीपलेसनेस मतलब अनिद्रा या नींद ना आना, सीक मतलब ढूंढना या खोजना, हेल्प सहायता, एडिक्टेड लत लग जाना आदि होना, स्लीपिंग पिल्स नींद की गोलियां, क्योर उपचार करना या चिकित्सा करना, डिसऑर्डर अव्यवस्था या व्याधि, इंसोम्निया इंसोम्निया मीन्स होता है अनिद्रा या नींद ना आना की बीमारी, बेटर ज़्यादा अच्छा, अवॉइड मीन्स बचना, और आइडेंटिफाई के मानी होते हैं पहचान करना, और लास्ट में है रिमूव, रिमूव के मानी हटाना या दूर करना। तो बच्चों आपको ये वीडियो लेसन कैसा लगा ज़रूर से हमें कमेंट करके बताएं, और अगर आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया तो ज़रूर से इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर गाइस।